What's up everyone? I hope you all are doing good. So in this video we're gonna talk about Goat Funded Future because recently मैंने Goat Funded Future के 6 account purchase करे हैं and all these 6 accounts are instant funded accounts. Now before I start making like review videos of Futures Profirm and start talking about all the Futures Profirm, the rules which they have, the best account type and why that account type which I'm talking about is the best account type, उन सबसे पहले ही ना मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया बिकॉज फ्यूचर्स में मेजरली मैं इंस्टेंट अकाउंट ही ट्रेड करता हूँ एंड मैं क्यों फ्यूचर्स में इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड करता हूँ उसका मैंने प्रॉपर कंपैरिजन वीडियो बना के डाला. यू कैन फाइंड द वीडियो इन द आई बटन. प्रॉपरली मैंने कंपेयर करा है हाउ इंस्टेंट अकाउंट ऑफ फ्यूचर्स आर लाइक 100 or even 1000 times better than that of a instant account of any CFD Profirm. So you guys, before like watching my other videos on Tradify, on Goat Funded Future, maybe on Lucid and on other Futures Profirm instant funded account, make sure to go that video so that तुम्हारे दिमाग में घुसे कि मैं जो चीज मना कर रहा हूँ वो क्यों मना कर रहा हूँ एंड क्यों मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर्स के इंस्टेंट अकाउंट आर लाइक 10, 20, 100 times better than CFD instant account. जब भी तुमको समझ आएगा. Now in this video we're gonna talk about Goat Funded Futures, the rule which they have because recently मैंने account purchase करा है and all these account are instant account. So I purchased 4 account and इसमें buy 2 get 1 offer चल रहा था during Christmas and New Year time. So I purchased 4 account. I get 2 account for free. Now I have 6 account and all 6 accounts are up 3000 in profit. And there are like 2 or 3 things which is like quite tough. बट अगेन तुम जब मेरी वो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट वाली वीडियो देखोगे ना विच यू कैन फाइंड इन द आई बटन, तुमको समझेगा भाई वो जो एक दो पॉइंट है ना वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू दैट ऑफ ऑल द थिंग्स विच यू गोना फेस व्हेन यू गो अहेड विद द CFD Profirm इंस्टेंट अकाउंट. CFD में ट्रेड करो, CFD में ट्रेड करने से मना नहीं कर रहा, मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अभी भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आगे भी ट्रेड करूंगा CFD Profirm में, बट ऑलवेज गो विद 2 step 1 step अकाउंट एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से. नाउ वी विल डायरेक्टली मूव अहेड टू द Goat Funded Future website. I'm gonna show you my dashboard and every single thing, plus I'm gonna talk about their best plan because my job, my goal, basically why I am like coming here or why I'm making video, not to like give you 20 ऑप्शन की ये इस प्रॉफर्म में ना ये भी अकाउंट है, ये भी अकाउंट है, ये भी अकाउंट है, ये भी अकाउंट है, सब देख लो, मैं सबके बारे में बता दूंगा. माई जॉब हेयर इज टू लाइक टॉक अबाउट द बेस्ट थिंग दैट प्रॉफर्म हैज टू ऑफर. अब तो मेरी बात सुनो, बाकी खुद वेबसाइट पे जाओ, खुद सारे रूल्स पढ़ो, खुद दूसरी चीजें भी देखो, देन यू एनालाइज ऑन योर सेल्फ कि भाई इस बंदे ने ये चीज बोली, मैंने खुद से देखा, इज इट लाइक ठीक है, ये जो सारी बातें बोली थी ये परफेक्टली मैच हो रही हैं, सारा कैलकुलेशन, सारी मैथ, सारी बातें एक परफेक्टली सिंक में बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही, देन यू टेक योर डिसीजन. बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी स्टार्ट द वीडियो एंड लेट me directly take you to the website of Goat Funded Futures. So here we are on the website of Goat Funded Futures and the max funding which you can take from them is like 750k and best account which they have is this instant account and मैं futures में instant account लेता हूँ and currently I have 6 account of 100 and all those accounts were instant account. Now if I take you down, alright, so it's 8th of Jan and ये still code active है, buy 2 instant plan at 50% off and get 1 free. So I purchased it at 880 USD जिसमें मेरे को 2 अकाउंट मिले थे 880 USD में and I got 1 account for free. So it's like you can consider it like this. Total 3 account of 100k costed me 300 USD. Each account costed me 300 USD because 900 divided by 3 is equal to 300. ठीक है, 300 USD and the drawdown which I am getting in these account is 5000 USD. You guys need to understand this thing. तुम जब एक CFD Profirm में 10k का अकाउंट खरीदते हो ना इंस्टेंट, वहां पे तुमको 300 का 10k का अकाउंट मिलता है जिसमें तुमको 700 से 800 का ड्रॉडाउन मिलता है, मैक्स टू मैक्स 1000 का ड्रॉडाउन मिल जाता है. बट हेयर इन फ्यूचर यू आर पुटिंग लाइक 3000 USD and getting a drawdown of 5000 USD. That is what futures are here for. अगेन ये सारी चीज़ें मैंने दूसरी वीडियो में बताई हुई हैं जो तुमको आई बटन में मिल जाएगी, बट आई गेस अभी वापस से तुम समझे होंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ लेवरेज फ्यूचर इज गिविंग यू. बट या इफ आई टेक यू डाउन, सो up to like 10,000 USD you get like 100% of the profit which you make on your account and after that you'll get 90%. Now they have this end of day drawdown plan which is like जो सारी Profirm में होता है, then this express plan and then we have this instant plan. So we're gonna talk about instant plan because instant plan is like the best plan which Goat Funded Futures have कंपेयर टू ऑल अदर प्लान्स बिकॉज जो बाकी प्लान है वो दूसरी Profirm में तुमको इससे बेटर मिल जाते हैं, लाइक इन Lucid, Tradify, इसमें बहुत बेटर तुमको जो बाकी प्लान्स है वो मिल जाता है कंपेयर टू दैट ऑफ Goat Funded Futures. नाउ द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज सो लेट्स से दिस इज द एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन अकाउंट 50k अकाउंट एंड दिस इज कॉस्टिंग यू 84.5, so 85 USD. Okay, now if you see
The max drawdown on this account is 2500, but the profit target is 4500. That is the only reason why I am saying कि better option तुमको दूसरी platform मिल जाते हैं when you go with end of day drawdown account. And same is with Express. So let's say we take an example of 50k Express account. You get a max drawdown of 1500 only, where you have to make a 3000. So again you are putting like 115 plus the drawdown is also like very low. एक standard जो है that is 2000, किसी किसी profit में 2500 भी है your max drawdown on a 50k account, but here the profit to drawdown ratio is like quite high, plus the price is okay, price is like completely fine, इतना ही price होता है usually, like price roam anywhere between like 80 to 120 130 USD of a 50k futures valuation with the end of day drawdown, but the drawdown is like very less and यहाँ पे इतना पता नहीं चलता, especially in the evaluation phase, because you can like pass it in one single day. Daily loss limit कोई है नहीं, so you can like take 1:2 trade and single day में तुम पास कर दोगे, but उसके बाद तुम्हारा जो है ना funded में तुमको drawdown काफी कम मिलता है. And same is the case with this EOD account. Here if you see 2500 DD है तुम्हारा, but the target is like quite high. Majorly profit में क्या होता है 2000 to 3000, but here it is like 25,000 to 45,000. But when we come to this, which is instant account, and that too like majorly when we go with a bigger size instant account, let's say 50k or 100k, or oh, they have come up with this 150k account recently. Damn, this is like, ये तो मैं आज ही देख रहा हूँ यार, ये आज ही आया है, ये तो पहले था ही नहीं जब भी मैंने 100k के अकाउंट खरीदे थे. और else I could have purchased like 4 account of 150k and उसमें मेरे को 2 फ्री अकाउंट मिल जाते. I could have done that. बट ये वाला ऑप्शन तो पहले था ही नहीं. डैम, दिस इज लाइक रियली गुड यार. दिस वन इज लाइक प्रीटी सॉलिड यार. बट क्या कर सकते हैं, अभी तो मैंने अभी लाइक ऑलमोस्ट लाइक आई हैव मैक्स एलोकेशन विद GoatFunded फ्यूचर. आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज 600k के अकाउंट है, बट दे हैव कम अप विद दिस 150k ऑप्शन एज वेल. नाउ आई नो मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस गोना गो अहेड विद दिस 50k, बट समवन हु इज लाइक वेस्टिंग हिज हार्ड अर्न मनी इन अ इंस्टेंट अकाउंट ऑफ 10k in a CFD prop firm, I will suggest you कि भाई better है भाई. You can obviously try this 100k account because 5,000 drawdown is something which you are getting when you trade with this 100k account, and that is the leverage, the purchasing power which you are getting with the futures prop firm, which is something which you are not at all getting with the CFD prop firm. So 100k account is the best. पहले बेस्ट था, अभी 150k आ गया है तो कुछ कर नहीं सकते. बट let's take an example of 100k. So usually this is the price, and so they, when like we go on to the final page, this comes down to around 880 when we purchase 2 account. तो 880 cost करता है plus 1 account free मिल रहा है, so 900 के अंदर तुमको 3 account मिल रहे हैं, so per account is costing 300. So now what you have to say is 300 is something which you are putting on the line, where you are getting a drawdown of 5,000, where the daily loss limit is 3,000, and the only thing which majority of the people gonna cry about in comment is 20% consistency. But भाई, you need to understand this one thing कि तुम CFD स्पेस में भी तो कर ही रहे हो ना. तुम जहाँ 300 के अकाउंट खरीद रहे हो 800 के ड्रॉडाउन के लिए, वहाँ पे भी तुम कैसे घिस के ट्रेड कर ही रहे हो ना. एटलीस्ट 300 अगर तुम लगा ही रहे हो तो उस प्लेटफॉर्म में तो लगाओ कि तुमको ड्रॉडाउन मिल रहा, तुमको लेवरेज मिल रही. 10k के अकाउंट में तुम क्या खोलते हो, 0.2 लॉट ऑफ गोल्ड. यहाँ पे एटलीस्ट तुम 6 कॉन्ट्रैक्ट तो खोल पाओगे. दैट इज द पावर विच यू आर गेटिंग हियर. प्लस तुमको लेवरेज मिल रहा भाई. ऑब्वियसली ड्रॉडाउन एंड ऑफ डे ट्रेलिंग है, बट कितना ट्रेल हो जाएगा भाई वो. तुम स्टिल वो 800 से तो जितना मर्जी तुम उसको ट्रेल करा लो, 800 से तो बहुत ज्यादा ही रहेगा. एंड 80% ऑफ द, और आई कैन से 90% ऑफ द इंस्टेंट अकाउंट इन CFD स्पेस हैज दिस ट्रेलिंग ड्रॉडाउन. उसमें भी ऐसा होता है कि पहले तुमको 5% बनाना है. जब 5% तुमने बना लिया, तुम्हारा ड्रॉडाउन आगे ब्रेक इवन पे स्टिक हो जाएगा. देन यू लाइक यू कैन विड्रॉ एंड ऑल दीज थिंग्स. बहुत सारी प्लेटफॉर्म में, इफ नॉट 90 देन 80% में है. सो इजंट इट बेटर दैट यू डू द सेम शिट हियर इन अ फ्यूचर स्पेस वेयर यू गेट द मोर freedom to trade with, because 5,000 is something which you have a lot of freedom. तुम multiple trade ले सकते हो. तुम्हारी leverage इतनी कम है, तुम्हारे पास drawdown इतना कम है कि तुमने 3 से 4 ट्रेड लिए, वो losing गए तो तुम्हारा अकाउंट ही डेड है. So that is something which you need to think about. I have never checked this 50k account price, but I'll check it now in front of you guys. But even if you like go with this 50k account instead of this 100k account, because I know majority of the लोग नहीं जाने वाले. So let's check this one as well. I'll take you to the website, the final page. Let's say you are purchasing 2 account, where you're gonna get like 1 account for
free because of their offer, and the total costing is 500. 500 is something which you are putting and you are getting 3 account. All right, 3 accounts, so 500 divided by 3 is equal to somewhere around 175 something. It gonna be somewhere around 170, 160, 170, 175. Let's keep it 170, इसी के आसपास आएगा। 170 में तुमको 3 अकाउंट मिल रहे हैं, सॉरी 170 का तुमको एक अकाउंट पड़ रहा है, 500 में तुमको 3 अकाउंट मिल रहा है। 500 यू आर पुटिंग ऑन द लाइन एंड यू आर गेटिंग अ ड्रॉडाउन ऑफ हाउ मच? सो एक जो इनका 50 के अकाउंट था, that has a drawdown of 2500. So 2500 is a drawdown. You are having 3 account, you are getting a drawdown of 7500. When you like put 500 in a CFD prop firm, let's take an example of maybe instant funding, वो तुमको 10 या 20 के का जो अकाउंट आता है वो तुमको इससे ज़्यादा कॉस्ट करता है, उसमें तुमको ड्रॉडाउन मिलता है 10%। तो लेट्स से तुम्हारा 10 के का अकाउंट है, उसमें तुमने लेट्स से 400 के अप्रॉक्स डाला, उसमें तुमको 10% का ड्रॉडाउन मिल रहा है, विच इज लाइक 1000। सो इजंट इट बेटर तुम 100 एक्स्ट्रा डालो, गेट अ ड्रॉडाउन ऑफ 7500 विच इज लाइक 12 और मे बी 15x अप्रॉक्स, इतना ही होगा, अप्रॉक्स 14-15x ही निकल के आ रहा है ना, इतना ही। यू कैन डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन, अप्रॉक्स इतना ही निकल के आएगा। 500 like 1 2 3 approx for 14 to 15x is the leverage which you are getting. That is the power. That is something which you need to understand. Again, majority of the people from my audience are very new to futures. तुमको ये चीज़ें बार बार देखनी पड़ेगी, तुम्हारे दिमाग में इतनी आसानी से नहीं घुसने वाली, बट देखो, समझो, वो समझ आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो समझो इन चीज़ों को। And obviously 100 के account by 100 के account is for 900, so obviously per account is 300. So हाँ, like almost same ही price है, so you can go with this 50 के account and तुम एक account भी ले, तो who is telling you to like go with like 3 account? You go ahead with 1 account. Obviously तुमको price ज़्यादा पड़ेगा because तुमको एक free नहीं मिलने वाला, plus there are like other things as well, but 1 account लो, still you are paying like 250, getting a drawdown of 2500, you are getting 10x of the leverage, plus you can open 4 contract is nothing but 4 lots of gold in this, or Nasdaq, or maybe other asset if you trade. That is the power which these account give you. Let me check about this 150 के account as well, because this is like very new account, and कल ही मैंने वेबसाइट खोली थी, and ये कल account ये वाला नहीं था इनके पास। Yeah, so this 150 के 2 account is costing 1123. Alright, so it's almost like 1150 divided by 3, approximate 1200 भी पकड़ता हूँ, 1200 divided by 3 is equal to 400 for each account, and I get a drawdown of 7500 is something which I'm getting in a single account. So in total I'm getting a drawdown of 22,500. Pretty amazing भाई, almost ये कितना जा रहा है मेरा? It's like 17 to 18x is the drawdown which I'm getting. You now need to understand the leverage which these prop firm give you, these futures prop firm give you, even that instant account in the futures prop firm give you. Now I hope you guys understand all these things, and if I show you my account, so these are my account, and if I show you these are the 6 active account. अब ये Project X में थे, अब Project X सारी prop firm से हट रहा है, whether it is Stadify, Lucid और Alpha Future, Goat Funded Futures, कोई भी prop firm सबसे हटा रहा है, because TopStep want to keep TopStep X to themselves only, so they are like removing it. So ये मेरा इन्होंने सारे account migrate कर दिए हैं to Tradovate, ये सारे मेरे Tradovate के account है, and as you can see like account is up 3000. If I show you this account as well, account is up 3000. So these are all of my account, and यहाँ पे पता नहीं 8 account show हो रहे हैं, but these are not 8 account. यहाँ पे मेरे टोटल 6 अकाउंट ही हैं, ये 2 अकाउंट आई गेस बाय मिस्टेक आ गए हैं क्योंकि मेरे डैशबोर्ड में भी नहीं है, एंड मेरे पास 6 अकाउंट ही थे। सो एज यू कैन सी ऑल दीज अकाउंट आर अप 3000 एंड 3090, and like these 2 accounts were up 3142 and again 3142. So these are the 6 account which I have as of now. Now if we like go to the rules, and if I talk about rules, so firstly let's keep it to 50%, 50k account. Now the only thing which you have to keep in mind is 20% कंसिस्टेंसी है, डेली लॉस लिमिट तुमको हिट नहीं करना, एंड ओवरऑल मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है तुम्हारा वो हिट नहीं करना। 4 lot is something which you can open in a 50k account, and 6 lot is something which you can open in a 100k, and 8 is something which you can open in a 150k account. 75k में 5 है, 25k में 3 lot है, और you can say contract, futures में contract बोलते हैं, so whatever you want to call it. So 50k account, 20% consistency, that's all you have to keep in mind. Then your daily loss limit and your overall loss limit, that's it.
You don't have to worry about anything. You just have to reach to a certain target जो कि तुम obviously इतने टाइम से गिरते पढ़ते CFD performance में करते आ रहे हो, that you reach to a certain target. When you reach to that particular target, you can request the payout. And if we go to the FAQs, so here we are in the FAQ section and we are avoiding this end of day drawdown account and express account. So directly we're gonna jump into the instant account, and I already told you why we are avoiding end of day drawdown account and other accounts. So when we are here at the instant account, you can see the account size, how do you qualify for the first reward. That is something which we want to know, because तुमने 3 चीज फॉलो कर ली, which is 20% कंसिस्टेंसी, ठीक है, योर डेली लॉस लिमिट उसके अंदर रह के तुमने ट्रेड करा है, ओवरऑल लॉस लिमिट के अंदर रह के तुमने ट्रेड करा है, इसके अलावा तुमको कुछ और फॉलो करने की जरूरत नहीं है. देयर इज अ सर्टेन टारगेट वेयर यू हैव टू रीच. उससे ऊपर जितना मर्जी निकल जाओगे वो तुम्हारे लिए, वो तुम पे डिपेंड करता है, बस तुमको 20% कंसिस्टेंसी के अंदर रहना है. बट दे हैव सेट अ सर्टेन टारगेट जहां तक तुमको पहुंचना है, एंड वंस यू रीच देयर यू कैन रिक्वेस्ट द पे आउट. सो द टारगेट इज लाइक 7%. 7% ऑफ 100 के अकाउंट इज 7,000. सो 7,000 इज समथिंग. सो 7,000 is something which you have to make on your 100k account in order to request the payout. And for a 50k account is 3,500. So on a 50k account you have to make 3,500 in order to request the payout. That is all you have to do. Now you guys gonna say कि इतना बनाना पड़ेगा उसके बाद ही हम रिक्वेस्ट कर पाएंगे. सो CFD प्रोफॉर्म में तुम ऑलरेडी बनाते आ रहे हो भाई, उसमें तुम पहले पास करते थे फिर उसमें बनाते थे. एंड अगर तुम नहीं बनाते थे तो जो इंस्टेंट अकाउंट लेते थे वहाँ पे तुमको 5% 6% बनाने के बाद विड्रॉल मिलता था. एंड जो फ्यूचर्स परफॉर्म भी हैं उसमें जब तुम पास करते हो 2000 के ड्रॉडाउन में 3000 बना देते हो, उसके बाद तुमको फंडेड अकाउंट मिलता है. उसमें तुमको बफर के ऊपर जाना होता है जब तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो विड्रॉल. सो अगर तुमको 50k के अकाउंट में 2500 का DD मिला हुआ है, तुमको 3500 दैट इज 7% बनाना है, तो ऑलरेडी तुम 2500 विच इज बफर लेवल, उसके तुम ऊपर जा रहे हो, जब भी तुम वैसे भी रिक्वेस्ट कर सकते ना. वो तो तुम नॉर्मल अकाउंट में भी कर रहे थे. सो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विच इज लाइक very different from what you gonna be doing in your average or normal future evaluation account models. So these are like bit complex things, but you need to understand all these things if you genuinely want to make money out of prop firms and out of trading. वरना बहुत सारी चीज़ें हैं वो करो, अगर यहाँ से कमाना है, यहाँ से निकालना है, यहाँ से सही में कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ों का तुमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एंड बहुत सोच समझ के तुमको हर चीज़, हर डिसीजन अपना लेना पड़ेगा. सो या देन यू हैव टू मेक द कंसिस्टेंसी ऑफ 20%. मिनिमम ट्रेडिंग डेज इज समथिंग विच यू हैव टू कंप्लीट. देन यू हैव टू मेंटेन दिस मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज. अब ये कंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कॉन्जिक्यूटिव डेज में होना चाहिए. कभी तुम्हारा लॉस भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है. बस 10 प्रॉफिटेबल डेज चाहिए इनको. एंड द मिनिमम रिवॉर्ड रिक्वेस्ट इज 250 while the maximum is based on your account. अब फ्यूचर्स में क्या होता है, जब भी तुम्हारे पास कोई अकाउंट होता है ना, उसके बेसिस पे सेट होता है कि लेट्स से किसी एक प्रॉफिट में 50 के अकाउंट से 1000 निकाल सकते हैं, किसी में 3000, किसी में 5000, फिर किसी में 1500, किसी में 2500. सो ये डिपेंड अपॉन प्रॉफिट टू प्रॉफिट रहता है कि किस अकाउंट से कितना विड्रॉल निकाल सकते हैं. सो हियर द पैरामीटर इज ऑन योर 25 के अकाउंट यू हैव टू मेक अ डेली प्रॉफिट ऑफ 100. ऑन अ 50 के अकाउंट यू हैव टू मेक अ डेली प्रॉफिट ऑफ 150 एंड ऑन अ 750 के अकाउंट यू हैव टू मेक 250. अब इसके बाद इन्होंने 100 150 का लिखा नहीं, दैट मीन्स उसका 250 और 300 ही होगा, हर में 50-50 बढ़ा रहे हैं. तो सो व्हाट डज दैट मीन इज कि 50k के अकाउंट में तुमको 10 दिन 150 से ऊपर बनाना है एंड यू विल बी एलिजिबल टू रिक्वेस्ट द पे आउट. 10 दिन 150 से ऊपर बनाना है, 20% कंसिस्टेंसी के अंदर रह के 7% तुमको बनाना है. दैट्स इट. तुमको ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बिकॉज तुमने अभी तक करा नहीं है, बट अगर तुम हो जो फ्यूचर्स ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, अगर उसको ये चीज़ बेसिक समझेगी कि ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, पहले मैं अकाउंट पास करता हूँ, फिर उसके बाद बफर बनाता हूँ, बफर के ऊपर जो बनाता हूँ वो मैं निकाल सकता हूँ. तो दैट इज समथिंग विच यू आर डूइंग हियर एज वेल. द ओनली थिंग इज यू ऑलरेडी एलिमिनेटेड दैट बफर थिंग विच यू गोना बी मेकिंग इन योर अकाउंट. सो इट्स बेसिकली इट्स अ विन फॉर यू ओनली कि तुमने वो टाइम पूरा एलिमिनेट कर दिया एंड यू आर पुटिंग दैट टाइम एंड द ट्रेड्स व्हिच यू कुड बी टेकिंग इन योर इवैल्यूएशन अकाउंट, नाउ यू आर टेकिंग दैट इन योर डायरेक्ट फंडेड अकाउंट्स. नाउ if you go to how do payout actually works, here it is. To qualify for withdrawal, you must have 5 winning days of at least 1% equity each. Maximum payout per withdrawal is 5,000 cumulative. Then here it is like how the payout cycle structure, and it is like with the very same thing. 10 दिन तुमको, मतलब तुमने let's say एक withdrawal निकाल भी लिया, then again next withdrawal के लिए तुमको वापस से 10 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, जिसमें तुमको I guess 50k के अकाउंट में 150 था तो उससे ऊपर का बनाना पड़ेगा. अगर तुम्हारा लॉस हुआ तो या फिर नेगेटिव में गया तो वो काउंट नहीं करा जाएगा. एंड
150 से ऊपर ही होना चाहिए. That's all they want to say. And how do subsequent payout works if we see that? And it says the same thing भाई कि 10 दिन कंप्लीट होने चाहिए, मिनिमम प्रॉफिट डेज एटलीस्ट 5 होने चाहिए इन ईच साइकिल, एंड अपना जो भी कंसिस्टेंसी है वो सब 20% की मेंटेन करना है. बट अब तुमको ना अपने अकाउंट को वापस से 10,000 के ऊपर लेके जाना है. Then only you will be able to request your second reward, and that is something which is there in Top Step as well, and a lot of other platform are coming up with this particular thing because मैंने एक किसी और प्लेटफॉर्म में भी ये चीज़ देखी थी. Then obviously third is this Code Funded Future. So काफ़ी सारी futures प्लेटफॉर्म भी ये सब रूल्स लेके आ रही है. Now how you can tackle it is, तुम कभी एक्सेस में बहुत पैसा बनाओ ही मत इसके अंदर, बिकॉज 20% कंसिस्टेंसी है. बहुत एक्सेस में बना के मतलब ही नहीं, और तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा. वट यू कैन डू इज यू रीच टू लाइक 7%. ठीक है, 7% के आसपास पहुंचो. यू जस्ट रिक्वेस्ट 1,000 to 1,500 USD आउट ऑफ दैट अकाउंट. ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारे 10 ट्रेडिंग डेज है ना, उस 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर स्लोली एंड स्टेडली 200, 250 बनाते बनाते वापस से अपने 7,000 के मार्क के ऊपर पहुंच जाओ. 7,000 तुम थे, 1500 निकाला, तुम्हारा अकाउंट बैलेंस आया 5,500 पे. अगेन यू ट्रेड दैट अकाउंट फॉर 10 डेज, 5 प्रॉफिटेबल डेज भी पूरे करे तुमने उसके अंदर, जिसमें से तुम हर दिन 150 बना रहे थे. ऑब्वियसली उन डेज में ट्राई करो कि 200-300 बनाओ, जिससे तुम्हारा 10 दिन के अंदर अकाउंट बैलेंस वापस 7,000 पहुंच जाए. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू टू लाइक रिक्वेस्ट a big chunk of the amount out of your payout, because ऐसा होता है ना फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में कि after your like 4 or 5 withdrawals you can like pull out every single thing out of your funded account, or what they will do is वो तुमको ना लाइव में शिफ्ट कर देंगे. when they like shift you to the live account as well, वहाँ पे भी तुम्हारा एक like डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट वो तुमको क्या करते हैं, वो लाइव अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं, एंड वहाँ पे तुम ट्रेड करके वहाँ से भी विड्रॉ ले सकते हो. सो जो भी तुम्हारा अकाउंट में बैलेंस है ना, दैट इज नॉट going anywhere, that is like yours only. It's just that you have to be consistent, that's it. You have to be very consistent. That is the reason like futures is not for everyone. Like very few people make money in futures and futures platform because it is difficult. It is actually bit difficult, but the potential is obviously higher, the leverage is obviously higher. The things which you're getting here is something which you're not gonna get in any CFD platform, but इतना सब कुछ मिल रहा है, थोड़ा टफ तो होगा ही. And that's all. That is something which they have explained कि 75K का अकाउंट था, 80,250 पहुंचा, तुमने 3,000 निकाला, अब न्यू बैलेंस हमारा 7,250 है. अब तुमको वापस से 80,250 से ऊपर जाना पड़ेगा in order to request your second reward. How do this subsequent payout work? So basically once you like get your like first reward, for the next reward what you have to do is you have to like complete 10 trading days, and सेकंड रिवॉर्ड के लिए तुमको 5 प्रॉफिटेबल डेज चाहिए. डिपेंडिंग ऑन योर अकाउंट साइज तुमको जितना भी एक सर्टेन अमाउंट बनाना होगा, 20% कंसिस्टेंसी के अंदर रह के वो तुमको बनाना होगा. एंड द थर्ड थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज तुम्हारा जो अकाउंट बैलेंस है टू रिक्वेस्ट योर सेकंड विड्रॉल, वो जो तुमने पिछला अकाउंट बैलेंस था ना जब तुमने रिक्वेस्ट करा था, उससे ऊपर रहना चाहिए. सो बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज, लेट्स से 10,000 तुमने बना रखा था, तुमने 3,000 रिक्वेस्ट कर लिया, यू ब्रिंग योर अकाउंट डाउन टू 7,000. नाउ यू हैव टू टेक योर अकाउंट बैक अप टू 10,000 एंड प्लस एटलीस्ट वो 100-200 भी पॉजिटिव में होगा ना 10,000 से, उतना तुमको एटलीस्ट लेके जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट योर सेकंड रिवॉर्ड. एंड दिस इज समथिंग, दिस रूल इज समथिंग व्हिच इज देयर इन टॉप स्टेप एज वेल. दे टॉप स्टेप recently launched this rule, and there are like 1 or 2 other futures platform where I have seen this particular rule, and the third or fourth platform is like Goat Funded Future, जहाँ पे ये चीज है कि तुमको सेकंड पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए जो तुम्हारा लास्ट पे आउट की इक्विटी थी ना, लास्ट पे आउट रिक्वेस्ट करने से पहले की इक्विटी थी, उससे ऊपर जाना पड़ेगा. एंड दैट इज हाउ एक्चुअली इट वर्क. एंड आई लाइक ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन you everything. There is nothing you need to like know more about. There are like 20% is something which you have to maintain, consistency which you have to maintain. Then your daily loss limit, overall loss limit 7% is something which you have to make. Now if you're looking at as कि भाई 7% बनाना पड़ेगा तो तुमको हमेशा ज़्यादा ही लगेगा, but when you look at from a perspective of someone who is like trading CFD instant account, वो तुम obviously वो चीज़ वहाँ पे कर ही रहते. And when you look at from someone's perspective who is like trading normal account, तो तुम वहाँ पे already 40% 50% की consistency मेंटेन करके अकाउंट पास कर रहे हो. देन अकाउंट पास होने के बाद भी तुम बफर से ऊपर जो अमाउंट बना रहे हो उसको विड्रॉ कर पा रहे हो. सो ना 50 के अकाउंट यू आर ऑलरेडी लाइक मेकिंग 2,000, लेट्स से 2,000 का डीडी है, 3,000 तुम्हारा टारगेट था, तुमने पहले वो बनाया, फिर उसके बाद तुम फंडेड होने के बाद तुमको बफर के ऊपर जाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिक्वेस्ट द रिवॉर्ड. सो एक्चुअली तुम्हारा 50 के अकाउंट में 2,000 का ड्रॉ डाउन, तो 2,000 ही तुम्हारा बफर हुआ, तो 2,100 यूजुअली यही होता है, 100 एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है बफर के ऊपर जाने के लिए. उसके ऊपर जो तुमने बनाया उसका तुम विड्रॉ ले सकते हैं. सो इट इज
जस्ट दैट कि वो जो एक पूरा प्रोसेस था ना, एक लेंथी प्रोसेस पास करने का, देन वो सेम चीज रिपीट करने का, फंडेड अकाउंट के अंदर बफर के ऊपर बनाने का, वो पार्ट तुमने एलिमिनेट कर दिया है। एंड नाउ यू आर बिट कंसिस्टेंट विद योर इंस्टेंट अकाउंट, जहां पे तुम बस वो सेम चीज ही कर रहे हो, बिकॉज पहले तुम उसको ट्रेड कर रहे थे 40-50% कंसिस्टेंसी के साथ, देन तुम फंडेड में ट्रेड कर रहे हो, तो बस उस सेम चीज को 20% कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करके चलाने वाले हो। दैट इज ऑल समथिंग विच यू आर डूइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो अदर रूल। हर प्लेटफॉर्म का बस एक जो पे आउट स्ट्रक्चर होता है ना, वो ही डिफरेंट होता है। ट्रेडिफाई में लेट्स से ऐसा है कि तुमको 6% बनाना है, 6% के बाद तुम 3000 निकाल सकते हैं, देन तुम फॉर द नेक्स्ट रिवॉर्ड साइकिल यू हैव टू मेक 3% ओनली, देन यू कैन लाइक पुल आउट द मनी, देन आफ्टर दैट यू हैव टू मेक 2% ओनली, देन यू कैन पुल आउट द मनी। एंड हियर द केस इज तुमको जो तुम्हारा लास्ट विड्रॉ था उससे बस ज्यादा बनाना है। सो मैं अगर दूसरे प्लेटफॉर्म से भी कंपेयर करूं, कुछ डिपेंड करता है यार तुम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। सो ऑल इन ऑल मैं देख के चलूं ना तो सेम ही पड़ जाता है, बिकॉज सो लेट्स से 150k के ट्रेडिफाई के अकाउंट में 6% बना रहा था, सो 9000 आई रीच टू 9000, ठीक है, 3000 आई विड्रॉ, माय अकाउंट बैलेंस कम टू 6000। अब 6000 में मेरे को 3% वापस से बनाना है, विच इज 4500। सो अब मैं ऑब्वियसली 9000 से ज्यादा ही बना रहा हूँ ना, दैट इज समथिंग विच यू आर डूइंग। बस इन्होंने जो लिखा है उसको एक अलग वे में लिखा है, दैट्स इट। अब तुम उसको किस वे से देखते हो, क्या कैसे देखते हो, बिकॉज ये चीजें तुमको डिफिकल्ट लग रही हैं, तो ये चीजें तुमको हर फ्यूचर इवैल्यूएशन में मिलेंगी, हर फ्यूचर परफॉर्म में मिलेगी, टॉप स्टेप में भी है। ये जो तुमको चीजें दिख रही हैं कि मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज करने पड़ेंगे, 150 बनाना पड़ेगा, 250 बनाना पड़ेगा, ये सारी परफॉर्म में भी है, चाहे वो फंडिंग टिक्स हो, टॉप स्टेप हो, एपेक्स हो, फंडिंग नेक्स्ट फ्यूचर्स हो, ट्रेडिफाई हो, ल्यूसिड हो, कोई भी परफॉर्म हो, ये सारी चीजें तुमको सब में करनी ही पड़ेंगी। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू पिक फ्यू फ्यूचर्स परफॉर्म फॉर योरसेल्फ। आई एम पिकिंग लाइक डायरेक्ट इंस्टेंट अकाउंट आउट ऑफ फ्यू परफॉर्म्स, जहां पे मेरे को बहुत ही बेटर लग रहा है इंस्टेंट अकाउंट में जाना। एंड फॉर द रिमेनिंग परफॉर्म आई एम गोइंग विद लाइक नॉर्मल 50 और 150 के अकाउंट। इट ऑब्वियसली डिपेंड फ्रॉम परफॉर्म टू परफॉर्म, बट ये सारी चीजें तुमको फॉलो करनी पड़ेंगी। आई हैव ऑलरेडी लाइक एक्सप्लेन यू ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग। इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं, कोई रूल ऐसे कुछ होते नहीं है। मेजरली फ्यूचर्स परफॉर्म में यही होता है, जो इनकी पे आउट पॉलिसीज होती है ना, ये थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। ये तुम एक बार दो बार रिपीट करके वापस एक वीडियो देख लेना। आई एम गोना मेक लाइक फ्यू वीडियोस ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल टू एक्सप्लेन यू द पे आउट पॉलिसी ऑफ डिफरेंट परफॉर्म इन लाइक 45 सेकंड और 60 सेकंड। एक ऐसी स्मॉल सीरीज चला दूंगा जहां मैं तुमको सारी परफॉर्म की पे आउट पॉलिसीज 60 सेकंड के अंदर बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन इट, वन ऑफ माय फ्रेंड इज डूइंग इट, साई जगन, ही इज डूइंग इट, एंड आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट, सो दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गोना डू इट ऑन माय इंस्टाग्राम। सो that's all for this video. I showed you like why instant account of futures perform are like one of the best, because you get the leverage, you get the lots to trade with. There is like few things which you have to manage, जो कि तुम नॉर्मल फ्यूचर का इवैल्यूएशन ले रहे हो उसमें भी चीजें कर ही रहे हो। एंड ऑब्वियसली 100-1000 टाइम इट इज बेटर देन CFD परफॉर्म। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू नीड टू वॉच दीज थिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज जब मैं जब परफॉर्म के बारे में नया जान रहा था, मैं मल्टीपल टाइम चीजें देख रहा था, समझ रहा था, सीख रहा था। मैंने भी ऐसे देख के खुद से रिव्यू वीडियोस देख के वेबसाइट पे जाके पढ़ के कैलकुलेशंस बिठा के सारी चीजें धीरे धीरे सीखी हैं। तुमको भी देखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बिकॉज पैसा कमाना भाई आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बाय करूंगा, यहाँ से सेल करूंगा, ऐसे अगर सोच के पैसा बनता तो हर कोई पैसा बना चुका होता है यार। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय। एंड no, there is no giveaway in this video. I purchased it. I gave my like genuine review about this, and I really like, and I know the Indian audience, you like want the affordable accounts. So I guess this was the most affordable account which is there in the futures market, and the most affordable instant account which is there. So I made a video on this. That's all for this video. See you in the next video. Tata, bye bye.